Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to do question paper of Sainik School which was conducted on 9th January 2022. So let's start the questions. According to question paper, this is question number 26. What is the fraction that the sum of shaded regions represent? Shaded parts कितने हैं? 8. ठीक है, और टोटल पार्ट्स हैं 12. नेक्स्ट सर्कल में कितने हैं? शेडेड पार्ट्स हैं 5 और टोटल पार्ट्स हैं 12. ओके, सो नाउ वी विल ऐड देम 13/12. 13/12 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इट विल कम 1/12. ओके, सो दिस इज द आंसर. दैट मीन्स number 4 is correct answer. Now we will move on next question. So our next question is, what is the weight of 2 dozen biscuits if each biscuit weigh 4 gram? So we know that 1 dozen is equal to 12. So 2 dozen will be 2 dozen is equal to 2 into 12. That means 24. ठीक है, तो each biscuit, weight of each biscuit is equal to 4 gram. We have to calculate 2 dozen biscuit का weight निकालना है. So 24 biscuit का weight of 24 biscuit is equal to 4 into 24. So it will be 96 gram. So fourth number is the right answer. Now we will move on next question. So our next question is, choose the smallest possible 7-digit number that you can form using each of the following digits. 5, 1, 8, 0, 3. We have given these digits 5, 1, 8, 0, 3. ठीक है, 5-digit number we have given, but we have to form 7-digit number. So smallest number कहाँ से start होगा? 1 से start होगा. ठीक है, now we will repeat 0 3 times. So we can make 7-digit number. 0 के बाद क्या आएगा? 3. ठीक है, then 5, then 8. So this is the 7-digit number and this is smallest 7-digit number. Okay, so our answer is 4th number. Now we will move on next question. So our next question is, sum of place values of the underlined digit in the given number is. We have given 6, 9, 5, 2, 8, 1. अंडरलाइन डिजिट है हमारी 5 और 1. नेक्स्ट है 5, 3, 4, 8, 5, 7, 3. अंडरलाइन डिजिट क्या है हमारी? 3 देन 7. ओके, सो ये 1000 प्लेस पर है तो ये कितना आ जाएगा? 5000. ये वंस प्लेस पर है सो इट विल बी 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5001. नेक्स्ट ये कितने पर है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, तो 3 लाख हो जाएगा ये. प्लस टेंस प्लेस पर है 7 तो इट विल बी 70. ठीक है, हमें निकालना क्या है? सम. सो 3 0 0 सम करने के बाद ये आ जाएगा आपका 3 0 0 0 7 0. ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे. ये आ जाएगा 3 0 5 0 7 1. नाउ यू कैन सी इन द ऑप्शंस. First option is the right option. Now we will move on next question. So our next question is, which one of the following figures is not symmetrical along the dotted line? ठीक है, A देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइडेड है. नेक्स्ट फिगर में अगर हम देख रहे हैं वो भी सिमेट्रिकल है. ठीक है, लेकिन N is not a symmetrical figure. So third option is the right option. Now we will move on next question. So our next question is, which one of the following is not an equivalent fraction of 5/7? ठीक है, 5/7 का हमें क्या देखना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो 5/7 अगर हम 15/21 लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ 3 तो इट विल कम 5/7.
तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। 45/56 नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 25/35 को अगर हम 5 की टेबल से कट करेंगे तो इट विल कम 5/7। सेम 10/14 को अगर हम 2 की टेबल से कट करेंगे तो इट विल कम 5/7। सो द आंसर विल बी 45/56. Now we will move on next question. Find the area of shaded part of the figure. ठीक है, we have given a rectangle. Area of rectangle होता है rectangle is equal to length into breadth. ठीक है, बिग रेक्टेंगल को अभी हम देख रहे हैं जिसकी लेंथ हमें 25 दी हुई है और ब्रेथ हमें दी हुई है 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और ये जो अनशेडेड फिगर है जिसकी हमें लेंथ 4 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ हमें 7 सेंटीमीटर दी है, तो दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल यू कैन से या अनशेडेड रेक्टेंगल यू कैन से। इज इक्वल टू 4 into 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अनशेडेड एक हमें ये भी फिगर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर जिसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। सो दिस इज अ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर यू कैन से और अनशेडेड स्क्वायर is equal to 6 into 6. So it will come 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें अनशेडेड का निकाल लिया एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अनशेडेड का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ अनशेडेड फिगर फिगर 28 + 36, ये कितना आ जाएगा आपका 4 देन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया है वो अनशेडेड का है। ठीक है, लेकिन हमें एरिया जो निकालना है वो शेडेड का निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड फिगर इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना निकला था 225 माइनस अनशेडेड का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना था 64, तो ये आपका एरिया आ जाएगा 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Convert the fraction 15 whole 1/25 into a decimal number. We have given fraction is 15 whole 1/25. ठीक है, हमें ये क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 15 into 25 + 1 हो जाएगा अपॉन 25। 15 into 25 375 + 1 अपॉन 25, ये कितना आ गया 376 अपॉन 25। आफ्टर डिवीजन इट विल कम 15.04। दैट मीन्स आर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 chairs इफ द प्राइस ऑफ 1 chair is ₹7642.45। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन price of 1 chair. Price of 1 chair is equal to ₹7642.45. Then price of 7 chairs. So 7 multiply 7642.45. After multiplication, it will come ₹53,497.15. So the answer will be second option. Now we will move on next question.
A webinar has 3 intervals of 5 minutes each. What is the total duration of intervals in seconds? एक वेबिनार में 3 इंटरवल्स हैं और हर इंटरवल की जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट्स की है. सो 1 इंटरवल इज इक्वल टू 5 मिनट्स. ठीक है, 3 इंटरवल्स का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स. ओके, सो क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल्स इन सेकेंड्स. सो वी विल डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है. ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 6 90, दैट मीन्स 900 seconds. So the answer will be third option. Now we will move on next question. An oil tank can hold 60 liters of oil. Another oil tank can hold thrice as much. What is the total capacity of both the tanks? एक ऑयल टैंक पे 60 लीटर्स ऑफ ऑयल होल्ड करता है और जो सेकेंड ऑयल टैंक है उसमें 3 टाइम्स ज्यादा ऑयल को होल्ड किया जा सकता है. देन व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द टैंक्स? हमें दोनों टैंक्स की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है. ओके, सो 1 टैंक होल्ड oil is equal to 60 liters. Another tank hold oil 3 टाइम्स ज्यादा करता है, तो दैट मीन्स 3 इंटू 60 लीटर, तो 180 लीटर. अब दोनों टैंक, बोथ टैंक्स होल्ड इज इक्वल टू 60 लीटर प्लस 180 लीटर is equal to 240 liter. So second option is the right option. Now we will move on next question. So what is the side of a cube if its volume is 64 cubic centimeter? So volume of cube क्या होता है? Side cube. Okay, so side cube we have given side cube is equal to 64 cubic centimeter. Side is equal to 64. So side is equal to, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का होल क्यूब. ठीक है, सो साइड इज इक्वल टू 4 होल क्यूब मल्टीप्लाई 1/3. ठीक है, इस क्यूब को हम किधर ले गए? इधर ले गए. ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा. 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आप इस तरह से कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू द फैक्टर्स ऑफ 64. 3 के पेयर्स बना लीजिए लाइक दिस. यू कैन सी 64 2 32, then 2 again, then 16, then 2 again, then 8, 2 again, then 4, then 2 again, then 2, then again 2, 1. ठीक है, तो 3 के बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग क्यूब, तो 3 के पेयर्स बनाएंगे. ठीक है, जैसे स्क्वायर में 2 के पेयर्स बनाते हैं, इसमें 3 के पेयर्स बनाएंगे. तो कितने पेयर बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4. इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज सेकेंड मेथड. Now we will move on next question. Which of the following numerals are arranged in ascending order? Now we will check first 6821 6812. तो ये छोटा हो गया नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड पे पहुंचते हैं तो 9075 7905. तो फर्स्ट वाला बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है, तो ये भी कैंसिल हो गया सेकंड ऑप्शन. अब थर्ड ऑप्शन पे हम मूव करेंगे, तो ये 10,529 है, ये 12,049 है, 12,509, then 15,249. So this is the right option because this is in ascending order. Okay, no need to go on further option. Okay, so this is the right option, third number. Now we will move on next question. So our next question is
choose a figure that will continue the series in the given figure. We have given this series, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट में, चलो हमने ये ले लिया एरो, ठीक है। एरो वाले को देखते हुए हमने देखना है कि कौन सी सीरीज ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो एरो पहले इधर इस साइड है, लेफ्ट साइड, बिलो साइड, ओके। उसके बाद ये लेफ्ट से किधर गया, ऊपर की साइड, ठीक है, इस साइड आ गया, मतलब यहां से ये इधर मूव किया, उसके बाद इधर मूव करेगा, ठीक है। तो थर्ड में इधर मूव कर गया, फिर इधर के बाद ये इधर मूव करेगा, तो ठीक है, फोर्थ में इधर मूव कर गया। अब यहां से ये कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए अब एरो इधर है कि नहीं है, तो ओनली वन ऑप्शन है जिसमें कि एरो इधर है, तो वो ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Our question is, if triangle plus 3/4 circle is equal to 420 and 3/4 circle minus triangle is equal to 90, then what is the value of 3/4 circle? ठीक है। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ट्राइंगल है उसको हमने मान लिया लेट ट्राइंगल बी एक्स, ठीक है। एंड लेट जो 3/4 सर्कल है उसको हमने मान लिया वाई, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर अस, ओके। सो ट्राइंगल प्लस 3/4 सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 3/4 सर्कल क्या है, y इज इक्वल टू कितना है, 420, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 420, इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड में देखेंगे 3/4 सर्कल, दैट मीन्स y माइनस ट्राइंगल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 90, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3/4 सर्कल। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो 2x प्लस वाई सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 420 माइनस 90, ठीक है। सो 2x प्लस वाई माइनस, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस y प्लस x इज इक्वल टू 330, ठीक है। ये y से y कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एक प्लस का एक माइनस का है, और 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, सो 330। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 330 अपॉन 3, दैट मीन्स 110, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 110, ठीक है। नाउ वी हैव टू calculate the value of y, so we can put the value of x in equation second. So our equation is y minus x is equal to 90, ठीक है। आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करते हो तो आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो y माइनस 110 इज इक्वल टू 90, तो y इज इक्वल टू 90 प्लस 110, y is equal to 200, so 200 will be the answer, that means second option is the right option. Now we will move on next question. So next question is, if the classes for the senior students start every day at 8:35 a.m. and at 1:45 p.m. with no breaks, find the total duration of the classes. 8:35 a.m. पर start होती है, ठीक है। तो ये 9:35 AM तक कितना टाइम लग गया, 1 आवर, ओके। 9:35 AM से 10:35 AM तक अगेन 1 आवर, ठीक है। देन 10:35 से 11:35 AM तक 1 आवर अगेन, फिर 11:35 AM से 12:35 PM तक 1 आवर, ओके। और 12:35
PM से, सॉरी PM लिखेंगे इधर हम, PM से 1:35 PM 1 hour अगेन। ठीक है, 1:35 PM से कितना टाइम रह गया, 1:45 PM, तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल कितने आवर्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 आवर्स, 5 आवर्स, ओके, 5 आवर्स 10 मिनट्स, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो नाउ वी विल कन्वर्ट इन द मिनट्स। 5 आवर्स को अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 6 30, दैट मीन्स 300 मिनट्स। ओके, और 300 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 300 plus 10 minutes is equal to 310 minutes. So this will be the answer. This is given in the option. Second option is the right answer. Now we will move on next question. In 5,63,672, the place value of 6 at the 10,000 place is dash times the place value of 6 at the 100 place. We have given this number 5 6 3 6 7 2। ठीक है, एक हमें दिए ये 10,000 प्लेस, दैट मीन्स 60,000, और सेकंड दिए 100 प्लेस, दैट मीन्स 600। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है जो 10,000 प्लेस पे जो नंबर है वो कितने टाइम से प्लेस वैल्यू ऑफ 6 जो कि 100 प्लेस पर है। ठीक है, तो 10,000 प्लेस पर है, उस वो वैल्यू है हमारी 60,000। ठीक है, जो 100 प्लेस पर है वो है हमारी 600। इसको अगर हम कट करेंगे तो देन वी विल गेट 100, तो द आंसर विल बी 100 टाइम्स। Anil had 78.6 meter fabric, which was just enough to make one set of uniform for 12 students. How much fabric would be used to make one uniform? 12 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने फैब्रिक की जरूरत होती है, 78.6 मीटर। ओके, सो 1 स्टूडेंट के लिए इज इक्वल टू 78.6 अपॉन 12, सो इट विल बी 6.55 मीटर, दैट मीन्स 6.55 मीटर, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Our question is select the next figure in the pattern. ठीक है, अगर हम इस वाली फिगर को देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, पहले इस पोजीशन में था, फिर ये इस तरफ मूव कर गया। ठीक है, अगेन ये नीचे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, फिर ये किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, an athlete finishes 400-meter race in 48 seconds. How many minutes has he spent in running if he ran 5 times on the same track at the same speed? 400 मीटर फिनिश करता है रेस 48 सेकेंड्स में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स, वी हैव टू कैलकुलेट द मिनट्स, हैज ही स्पेंट इन रनिंग इफ ही ran 5 टाइम्स। अगर वो 5 टाइम्स सेम ट्रैक पर दौड़ता है तो वो कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, तो 5 टाइम्स दैट मीन्स 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी 5 टाइम्स लगेगा, 5 × 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 48 ये कितना हो जाएगा, 240 सेकेंड्स। ओके, बट वी हैव टू कैलकुलेट इन मिनट्स, सो 240 अपॉन 60 मिनट्स। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 4 = 24। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 4 मिनट्स। तो ये 4 मिनट्स में उसने कितनी कवर की डिस्टेंस, 2000 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So the answer will be first option. Now we will move on next question. Which one of the following are arranged in descending order? It is a very easy question. Now we will check first option, 2/5, 2/7, 2/13, 2/9 and 2/3. हम इसमें देख रहे हैं कि सारे न्यूमरेटर सेम है।
ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है। नाउ वी विल सी द डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। जैसे 2/3, ठीक है, क्योंकि 2 तो सभी में सेम है न्यूमरेटर, लेकिन 3 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो फ्रैक्शन में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 2/3। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गया, क्योंकि ये जो सीरीज है वो 2/3 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन will be cancelled. Now we will move on second option. 6/11, 14/11, 10/11, 4/11, 2/11। ठीक है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सारे सेम है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, जो नंबर बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है। जैसे 14 इसमें सबसे बड़ा है, तो 14/11 से सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन इसमें 6/11 से सीरीज स्टार्ट है, तो इट विल बी कैंसिल ऑल्सो। नाउ वी विल मूव ऑन थर्ड ऑप्शन। 7/6, 7/8, 7/12, 7/15, 7/18। ठीक है, सेम इसमें देखिए आप फर्स्ट ऑप्शन की तरह से ये कि न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, तो 7/6 फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 7/6, देन 7/8, ठीक है, देन 7/12, then 7/15, then 7/18। ये आपका सीरीज में है, तो दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। नो नीड टू गो ऑन फर्दर ऑप्शन, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, what must be added to 2.4624 to get 6.785? We have given this value 2.4624। इसमें क्या ऐड किया जाए जिससे कि हमें 6.785 वैल्यू मिल जाए। तो वी विल ऐड x इज इक्वल टू 6.785। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6.785 minus 2.4624। ठीक है, now we will subtract the values, so it will come 4.3226। now we will see in the option 226 किधर है, third option will be the right option। now we will move on next question। so our next question is, identify the greatest fraction from the following: 2/11, 2/7, 2/13, 2/9, then 2/3। ठीक है, वी आर सीइंग कि न्यूमरेटर आर सेम, ठीक है, बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। सो 2/3 विल बी द राइट आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर ईयर 76,43,872 students appeared for an exam. Out of them, if 42,37,602 were girls, how many were boys? Very easy question. Total number of students हमें दिए, जो student appear हुए थे एग्जाम में, तो students appeared in exam is equal to 76,43,872। गर्ल्स हमें कितनी दी हुई है, गर्ल्स जो अपियर हुई थी वो है 42,37,602। नंबर ऑफ बॉयज हमें निकालने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बॉयज आ जाएंगे। बॉयज इज इक्वल टू 76,43,872 minus 42,37,602. So it will come 34,06,270 boys. ठीक है, now we will see in the option. Third option will be the right option. Now we will move on next question. Which one of the following is the incorrect option? Area we have given 240 square centimeter. तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हमें दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि लेंथ इनटू ब्रेथ 240 नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू चेक इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 240 जिसका आएगा दैट मीन्स
वो तो करेक्ट ऑप्शन है, जिसका नहीं आएगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 19.2 फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई 12.5, तो ये आ रहा है आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 15, ये भी कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। 54 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट मीन्स this will be the right answer. Third option will be the right option. So no need to go on last option. Guys, in this video we have completed 25 questions and we will bring rest of 25 questions in the next video. So guys, if you like this video, please like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon for new updates. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.